اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کا نام ای سی ایل میں عجلت میں ڈالا گیا. انہوں نے میثاق جمہوریت کی حمایت بھی کر دی. کہتے ہیں شہباز شریف کو چیئرمین پی اے سی بنانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا. شہر اقتدار کا موسم بدلا نہ ہوا بدلی، لیکن پی ٹی آئی کے اہم رہنما شاہ محمود قریشی بدلے نظر آئے. ایک تیر میں دو شکار کر ڈالے. پہلے کہا وہ ذاتی طور پر بلاول بھٹو کا نام اس طریقے سے ای سی ایل میں ڈالنے کے حق میں نہیں تھے. میری رائے میں اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے تھا، پہلے بھی اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے تھا، اور 172 کو یکمشت میں سمجھتا ہوں میری رائے میں اجلت میں نہیں ہونا چاہیے تھا. شاہ محمود قریشی نے بات یہی ختم نہیں کی، بلکہ اس میثاق جمہوریت کی بھی حمایت کر دی، جس کو تحریک انصاف ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہے. کہا حکومت اور اپوزیشن مل کر ملک چلائیں. میں یہ ریکارڈ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے اختلافات کے باوجود میں نے اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پارٹی کے اندر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے حق کو تسلیم کیا اور بات کی کہ ماننا چاہیے. اور جیسے کل گرینڈ الائنس کی بات ہوئی اور اس میں کہا کہ ہم نے ڈیموکریٹک رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی ہے، ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی جا رہی ہے، تو اس نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ سب روایات شامل ہیں. ہاؤس کی کارروائی اس میں شامل ہے، ہمارے رویے شامل ہیں، ہماری بردباری اس میں شامل ہے، ہمارا حوصلہ اس میں شامل ہے، ہمارا باہمی احترام اس میں شامل ہے. قائد حزب اختلاف بھی تشریف لے آئے ہیں اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ یہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور یہاں بہت سے حضرات تشریف فرما ہے جو بڑے تجربہ کار ہیں. شاہ محمود قریشی نے پارٹی قیادت کی مخالفت کے باوجود شہباز شریف کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیشن بنانے میں اپنے کردار پر بھی ایوان میں خوب داد سمیٹی. عوام بجلی، گیس اور پانی جیسی بنیادی سہولیات زندگی سے محروم ہیں، لیکن وفاقی وزراء پارلیمنٹ میں چیمبرز نہ ملنے پر برہم ہیں. وزراء نے شہباز شریف سے ایک چیمبر خالی کرنے کا مطالبہ کر دیا اور فیصل واڈا نے تو حد ہی پار کر دی. آپ بھی دیکھیے. عوام غربت مہنگائی کے ہاتھوں چیخیں مار رہی ہیں، تو کیا ہوا؟ وزراء بھی چیخیں مار رہے ہیں. بڑی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ بار بار آفس جا میں اٹھ کے جا رہا ہوں اسمبلی کا سیشن چھوڑ کے آفس کے اندر، لیکن یہاں آکوپیشن پہلے سے آکیپائی کر چکے ہیں، اس میں منوپلی ہوگی. ضرورت تو ہے لیکن اب لڑ تو نہیں سکتے. عوام کی چیخیں بنیادی ضروریات زندگی کے لیے ہے، جبکہ وزراء کی چیخیں پرتعیش کمروں کے لیے، جنہیں پارلیمانی زبان میں چیمبر کہتے ہیں. وزراء ان چیمبروں کے لیے اتنے اتاولے ہو رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے چیمبر واپس لینے کا مطالبہ بھی بآواز بلند کر رہے ہیں. ایک منسٹر چیمبر نہیں لے سکتا اور اسپیکر صاحب ایک منسٹر کو چیمبر نہیں دے سکتے ہیں، وہ منسٹر عوام کے لیے کیا خدمت کر کے محکمہ کیسے چلائے گا وہ؟ آئیے اب ہم آپ کو بتائیں کہ چیمبر ہوتا کیا ہے. منسٹر چیمبر میں 2 اسٹاف کے کمرے، کچن، اٹیچ باتھ اور ایوان کی کارروائی سننے کے لیے ریڈیو اور ٹی وی کی سہولیات بھی موجود ہوتی ہیں. وفاقی وزیر فیصل واڈا تو شہباز شریف سے کچھ زیادہ ہی خفا دکھائی دیتے ہیں. انہوں نے تو اپوزیشن لیڈر سے سارے ہی چیمبر واپس لینے کا سوچ رکھا ہے. اس وقت 29 میں سے 24 چیمبر پہلے ہی وفاقی وزراء اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے زیر استعمال ہیں. وزراء کا خیال ہے کہ شہباز شریف ایک چیمبر خالی کریں تو اس کے ساتھ موجود حال ملا کر نئے چیمبر بنائے جا سکتے ہیں. پاکستان کا تمام ڈیٹا اور معلومات اب آئی ایم ایف کی براہ راست رسائی میں ہوں گی. پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے بہتر جنرل ڈیٹا شیئرنگ کے نظام کو لاگو کر دیا ہے. پاکستان نے معاشی اعداد و شمار اکٹھا کرنے کے لیے آئی ایم ایف کا طریقہ اختیار کر دیا. آئی ایم ایف کے مطابق درست معاشی ڈیٹا سے اسٹیٹ بینک، وزارت خزانہ اور ادارہ شماریات کے درمیان رابطہ بہتر ہوگا. معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق درست اعداد و شمار کے اکٹھا ہونے سے حکومت کے لیے بجٹ بناتے وقت فیصلہ سازی میں آسانی ہوگی. نیشنل ڈیٹا سمری پیج ایک قومی ڈیٹا پورٹل ہوگا جس پر نیشنل اکاؤنٹ، گورنمنٹ آپریشنز، قرضوں، مالیاتی سیکٹر، ادائیگیوں کے توازن کے بارے میں ہر قسم کا ڈیٹا وار دوسری تمام معلومات دستیاب ہوں گی. جبکہ ان نیشنل ڈیٹا
समरी पेज का लिंक IMF की मुतालिका वेबसाइट पर मौजूद होगा। तमाम डाटा मशीन रीडेबल फॉर्म में भी फराहम किया जाएगा। IMF के मुताबिक इससे तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए पाकिस्तान की मालियाती पॉलिसियों और इख्तिसादी सूरत-ए-हाल की मॉनिटरिंग में आसानी होगी, जबकि रेटिंग एजेंसीज और सरमायाकारों को भी सहूलत होगी। शहरी हो जाएं तैयार, मूसलाधार बारिश बरसाने वाली हवाएं कल से पाकिस्तान का रुख करेंगी। 18 से 25 जनवरी तक तेज बारिशें होंगी। मरी समेत शुमाली इलाकों में कई फीट बर्फबारी की घंटी बज गई। बारिश और बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा रहेगा। खबरदार, होशियार, शहरी सर्दी और बारिश से बचने की तैयारी कर लें, क्योंकि बारिश बरसाने और बर्फबारी वाले बादल कल से पाकिस्तान का रुख करेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों को असल सूरत हाल का सामना होगा 18 जनवरी से। इंतजामिया तमाम इंतजामात मुकम्मल कर ले, क्योंकि मुसलसल बारिशों और बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात भी हो सकते हैं और महकमे मौसमियात ने इंतजामिया को भी खबरदार कर दिया है। 18 जनवरी से शुरू होने वाला बारिश का ये सिलसिला 25 जनवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल गरजेंगे और बरसेंगे। बारिश के बाद हम कुछ बात कर लेते हैं बर्फबारी की। तो सबसे पहले कुछ जिक्र हो जाए मलका कौसार मरी का, जहां पर बर्फबारी होगी। इसके अलावा दीगर बाला इलाकों जहां पर चित्राल, कालाम, गिलगित, सवाद, मालम जब्बा और गलियात शामिल हैं। इसके अलावा नारान, कागान, वादी कोयटा, चमन और फाटा के बाला इलाकों में भी कई फीट तक बर्फबारी की पेशगोई की गई है, जिससे सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो जाएगा। कराची में पुलिस अफसर की प्रोटोकॉल मोबाइल ने मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवानों को कुचल दिया। 22 साल का नौजवान इब्रार मौके पर ही दम तोड़ गया। समर अब्बास की रिपोर्ट में देखिए। में पुलिस मोबाइल की तेज रफ्तारी ने एक नौजवान की जान ले ली। गुज़श्ता रात 3:30 बजे के दरमियान आला पुलिस अफसर के प्रोटोकॉल में शामिल पुलिस मोबाइल ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 22 साला नौजवान इब्रार मौके पर ही दम तोड़ गया। मोटरसाइकिल पर 3 नौजवान सवार थे। हादसे में जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि मुकदमा दर्ज करेंगे, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम पता कर रहे हैं कि ये गाड़ी कौन सी थी। इंशाअल्लाह ताला पर्चा अपनी 320 का हो रहा है उनके खिलाफ। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक हादसे में जाबाक और जख्मी होने वाले नौजवान क्लिफ्टन में वाक़या एक रेस्टोरेंट में काम करते थे। समर अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। सिंध असेंबली के अरकान का कहना है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जमहूरी अमन को बचाने के लिए निकले हैं। उन्होंने कहा कि तब्दीली सरकार तो अपने लिए खुद ही खतरे की घंटी बजा चुकी है। रिपोर्ट कर रहे हैं आजाद नोहरियो। के बादशाह आसिफ अली जरदारी आ गए हैं मैदान में। क्या तब्दीली सरकार के लिए खतरे की घंटी बज सकती है? आइए जानते हैं अरकान सिंध असेंबली से। हम किसी की हुकूमतें नहीं गिरा रहे हैं और ना ही PMLN ने अभी तक कोई ऐसा बयान दिया है। हुकूमत खुद अपने वज़न से नाअहली के बोझ से गिर रही है, वज़रा की बेअक़ली के बयानात से गिर रही है। आसिफ अली ज़रदारी साहब, जो सारी दुनिया को पता है कि जो 5 साल की उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट चलाई है, वो पाकिस्तान में कोई लीडर शायद नहीं चला सकता। अब वो कल निकले, अभी तो सिर्फ BNP मेंगल ग्रुप आया, अभी तो देखें आगे आगे आता है और कौन कौन हमारे साथ। मुफावम के बादशाह जो है वो यकीनन एक सियासी विजन रखते हैं और जिस तरह उन्होंने पास में देख लें कि जिस तरह वो 5 साल वो प्रेसिडेंट के तौर पर रहे और जिस तरह के इख्तियारात उन्होंने पार्लियामेंट को दें, तो इस वक्त उनका एक्टिव होना अलार्म ज़रूर है PTI की गवर्नमेंट के लिए। कल अपोजिशन भी सारी इकट्ठी हो गई है, अख्तर मेंगल साहब इनसे अलग हो रहे हैं, तो ये तो फेडरल, ये सिंध की बातें करते हैं। सिंध में क्या इनको जो फेडरल गवर्नमेंट अभी नहीं बचेगी इंशाल्लाह। जरदारी साहब इज़ ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, तो उसमें जमहूरी रवायतों को हम लेके आगे चलते हैं। दैट्स वेरी गुड साइन। हुकूमत तो नाअहल है, हुकूमत ने तो मतलब साबित कर दिया कि वो हुकूमत चलाने के अहल नहीं है, तो झटका है। 7 मेंबरों का फ़र्क है, 4 तो चले गए, बाकी देखा जाएगा इंशाल्लाह। अरकान सिंध असेंबली का कहना है कि तब्दीली सरकार के लिए कोई और नहीं, खुद ही खतरे की घंटी बजा चुके हैं। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ आजाद नोडे, 24 न्यूज़, कराची। सिंध असेंबली में गुब्बारे से हवा निकालने और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की गूंज रही। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ने ऑपोजिशन में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का इंदिया दे दिया। नुसरत सहर ने हुकूमत को करारा जवाब दे दिया। आजाद नोडियो की रिपोर्ट में देखिए।
सिंध असम्बली में गुब्बारे से हवा निकालने और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की हुई बाज गश्त। ऐवान में महकमा तवानाई के सवालात और जवाबात की बारी आई तो अराकीन में भी तवानाई पैदा हो गई। नुसरत सहर अब्बासी और पुराने साथी इम्तियाज शेख के माबैन नोक झोंक। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख बोले, बार बार यू टर्न लेने वालों के अपने अराकीन टूट कर हमारी सफों में शामिल होने वाले हैं। ये बातें करते हैं सर, और सर इनको चाहिए कि मसले हल करें, सिंध के मसले हल करें, लोगों के मसले हल करें। उल्टा हुकूमत पर हमला करने के लिए सर वहाँ पहुँच जाती है फेडरल गवर्नमेंट। GDA की रुकन ने भी दिया करारा जवाब और नुसरत सहर अब्बासी बोली, गुब्बारे से हवा निकलने के बाद उनका हश्र क्या होगा। कि उन्होंने कह दिया कि हवा गुब्बारा किसकी हवा निकलने वाली है, अभी पता चलने वाला है। सप्लीमेंट पे आ जाए, हवा किसकी निकलने वाली है अभी पता चलने वाला है। MMA के रुकन असम्बली अब्दुल रशीद भी तब्दीली सरकार पर बरस पड़े और बोले, पानी मांगते हैं तो फवाद चौधरी भेज देते हैं। हमें सिंध में फवाद चौधरी नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए। हमें सिंध में मुर्गी और अंडे नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए। बात तल्ख है लेकिन बात हकीकत है कि शोबदेबाजियों से काम नहीं चलेगा। आरिफ मुस्तफा जतोई, नुसरत सहर अब्बासी और इम्तियाज शेख के दरमियान नोक झोंक के बाइस ऐवान शोर शराबे की नजर हो गया। ऐसे सीरियल नंबर इनको मिलता है, उस हिसाब से You already discussed this, okay? We had already cleared it out. It's not, sir. Now you again, you have asked question number 76. ऐवान ने सिंध के हिस्से का पानी देने की तहरीक मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। इजलास कल 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन सज्जाद जादी और राहिल अहमद के साथ आज़ाद नूरियो, 24 न्यूज़, कराची। सरहदों का दिफा हो या दहशतगर्दों को सबक सिखाने का मार्का, पाक फौज के जवानों और अफसरों ने हमेशा ही सीना तान कर दुश्मन को ललकारा है। हर इम्तिहान में सुरखरू हुए और मुल्क व कौम का नाम रोशन किया। इसी बारे में रिपोर्ट देखते हैं। वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले सपूतों का नाम हमेशा जिंदा और जावेद रहेगा, जिन्होंने हर महाज पर वतन का दिफा किया और जानों का नजराना दिया। कोटद्दू के सिपाही मतलूब हुसैन को शहीद हुए 19 बरस बीत गए। उन्होंने सियाचिन के मकाम पर जामे शहादत नोश किया। पाक फौज के हवालदार मोहम्मद हुसैन नाजिर ने वाना में वतन पर जान कुर्बान की। शहीद की 5वीं बरसी आबाई इलाके शक्करगढ़ में मनाई गई। पाक फौज के सिपाही मोहम्मद यूसुफ की 18वीं बरसी पत्तोकी के इलाके सराय मुगल में मनाई गई। वो मुजफ्फराबाद के सरहदी इलाके में दुश्मन से लड़ते हुए 2000 को शहीद हुए। मियांवाली के रिहायशी पाक फौज के सिपाही मोहम्मद अफजल शहीद की 16वीं बरसी मनाई गई। वो 2003 को आजाद कश्मीर में शहीद हुए।